Assalamu alaikum. We're going to continue our lecture number 25 with chapter number 12 that we were discussing in the last lecture. Chapter number 12 is about distributing products. अब तक आपको ये idea हो गया होगा कि जब मैं distribution of products की बात करती हूँ, what do I mean when I say the word distribution? It's going to involve everything. आप distribution channels कौन से use करते हैं, आपके channel members कौन से हैं, आप direct distribution channels use करेंगे या non-direct distribution channels use करेंगे. Again, we're just going to go through the chapter outline. First up, we're going to discuss the distribution mix. के distribution होती क्या चीज़ है, intermediaries किस किस्म के होते हैं. Then we're going to talk about wholesaling, retailing and physical distribution of a particular product. Distribution mix की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपके distribution channels भी उसी में आएंगे, उसमें आपका non-direct distribution channel या direct distribution channel भी उसमें आएगा, उसमें आपकी distribution strategy भी आएगी, चाहे वो intensive हो, selective हो या exclusive हो, और उसमें आपका channel कॉन्फ्लिक्ट या जब हम चैनल लीडर की बात करते हैं, चैनल कैप्टन की बात करते हैं, वो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में ही आता है. आज का लेक्चर हम होल सेलिंग के साथ स्टार्ट करेंगे. नाउ होल सेलिंग is something that I've already told you before. A wholesaler is basically an individual. A wholesaler is basically an organization जो कि producer से bulk में या larger quantities में चीज़ खरीदती है और अपने पास store करती है और आगे further retailer को sell करती है. Now again, you need to be very clear at this point in time that the wholesaler will not sell directly to the customer or to the end user. A wholesaler will sell to the retailer and then the retailers will be the ones जो कि आपके end users को या customers को sell करते हैं. Now जब हम wholesalers की बात करते हैं, wholesalers की भी different categories होती हैं या different types होती हैं. The very first type of wholesalers that we have are something called as merchant wholesalers. Now merchant wholesalers आपके 4 different types के होते हैं. The very first type of merchant wholesalers are called as full service wholesalers. Now full service wholesalers are those people who provide credit, market and merchandising services. इसका मतलब ये है कि जनरली जो आपके जब आप ग्रोसरी स्टोर में ग्रोसरी करने जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो रिटेलर जो है किसी होलसेलर से ही ख़रीदता है. एक ऐसा होलसेलर जो कि रिटेलर को प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करे, एक ऐसा होलसेलर जो कि रिटेलर को मार्केटिंग के लिए चीज़ें भी प्रोवाइड करे. व्हेन आई से मार्केटिंग आई बेसिकली मीन्स के बैनर्स प्रोवाइड करे या लीफलेट्स प्रोवाइड करे जो कि रिटेलर अपनी दुकान पर लगा सके. और एक ऐसा होलसेलर जो कि रिटेलर को क्रेडिट भी प्रोवाइड करे. क्रेडिट इज क्योंकि द होलसेलर सेज टू द रिटेलर कि जी हम आपको प्रोडक्ट तो दे देते हैं लेकिन आप कैश बेशक हमें 30 दिन के बाद दें. सो फॉर दैट 30 days द होलसेलर डज नॉट एक्चुअली द होलसेलर हैज गिवन द प्रोडक्ट्स टू द retailer, yes, but the retailer has not made any payment to the wholesaler. So what the wholesaler is doing is a merchant wholesaler का जो first type है which is a full service wholesaler. A full service wholesaler is providing credit to the retailer, is providing marketing services to the retailer and is also providing the particular product or a particular good to the retailer. So उसको आप अपना full service wholesaler कहते हैं. The second type of merchant wholesaler that we have is something called as a limited function wholesaler. Limited function से automatically जहन में जो लफ्ज़ आता है कि ये एक ऐसा wholesaler होता है जो कुछ काम करता है और कुछ काम नहीं करता. So that particular wholesaler is called as a limited function wholesaler. That means this person is going to provide fewer services sometimes. Maybe एक जो limited function wholesaler है वो शायद सिर्फ storage provide करे, वो कुछ ना करे, वो क्रेडिट भी प्रोवाइड नहीं करता, वो मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ प्रोड्यूसर से चीज़ ख़रीदता है, अपने पास स्टोर करता है. रिटेलर जो है वो इस लिमिटेड फंक्शन होलसेलर के पास आता है, उससे डील करता है, उससे बातचीत करता है. जब उससे चीज़ ख़रीद लेता है तो रिटेलर आपका जो लिमिटेड फंक्शन होलसेलर है उसके स्टोरेज रूम से या उसके जो स्टोर रूम है वहाँ से प्रोडक्ट उठाकर अपनी रिटेल आउटलेट पर ले जाता है. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ limited function wholesaler, whereby the wholesaler will only perform a single function of maybe storing a particular product. The third type of wholesaler that you have is a drop shipper. A drop shipper is a wholesaler who takes orders, negotiate, takes title and arrange for shipment. इसका मतलब है कि एक जो drop shipper है वो physical possession नहीं लेता गुड का.
या वो फिजिकली जो प्रोडक्ट है उसको अपने पोजेशन में नहीं लेता। वो क्या करता है कि वो ऑन बिहाफ वो प्रोड्यूसर से इन कांटेक्ट होता है, वो ऑन बिहाफ ऑफ रिटेलर को ऑर्डर लेता है, उस ऑर्डर की बेसिस पर प्रोड्यूसर को ऑर्डर देता है। ऑर्डर जब दे रहा होता है तो ऑब्वियसली नेगोशिएट कर रहा होता है टर्म्स को कि किस प्राइस पर वो जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ बेचेगा। जब वो नेगोशिएशंस ख़त्म हो जाती हैं तो टाइटल जो है वो आपके होलसेलर के पास आ जाता है। फिर आपका होलसेलर जो है वो रिटेलर से पेमेंट लेता है और आपकी गुड को आगे फर्दर शिप कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस में फ्रॉम ऑर्डर इनिशिएशन टू द शिपमेंट ऑफ द गुड टू द रिटेलर आपका होलसेलर के पास फिजिकल पोजेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गुड नहीं आता है। द होलसेलर will give an order to the producer, the wholesaler will negotiate the price with the producer, the wholesaler will take the title of the product, title का मतलब सिर्फ ownership है, physical possession नहीं है, and then the wholesaler will ship the product or ship the good to the retailer on payment, or when the retailer makes the payment the shipment will be made। इस पूरे process में आपका drop shipper wholesaler जो है वो physical possession good का या product का नहीं लेता। Finally, you have your rack jobbers. Rack jobbers are those wholesalers who market consumer goods directly to retail outlets, marking prices and set displays. For example, बहुत दफ़ा आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और ये मैगी या कनौर नूडल्स जो है उनका कोई नया फ्लेवर आता है, राइट? और नए फ्लेवर में आपके वो जो मैगी नूडल्स के आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएं वहाँ पर उनके बिल बोर्ड्स भी लगे होते हैं, बंदे भी खड़े होते हैं और वो आपको वहीं पर टेस्ट करा रहे होते हैं कि जी आप ये चखिए, नया टेस्ट आया है, नया फ्लेवर आया है, do you like it, don't you like it, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे, and they try to motivate you to buy that particular product. Those people are called as rack jobbers. So a rack jobber is basically a wholesaler who market consumer goods directly to retail outlets, and when they're marketing the goods they're also marking prices and setting displays. Similarly, for example, जो आपका comfort था, comfort is basically a fabric softener, आपका होता है जो आप कपड़े धोने के बाद कपड़ों में डालते ताकि खुशबू भी आए और उनकी लॉन्ग लाइफ भी हो जाए। इस सॉफ्टनर के लिए अगेन comfort के लिए आपके जो डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स थे वहाँ पर आपके रैक जॉबर्स आ गए थे। they were displaying to the customers कि ये comfort जो फैब्रिक सॉफ्टनर है वो कितना अच्छा है, कपड़े में से कितनी अच्छी खुशबू आती है, चीज़ कितनी अच्छी। सिमिलरली कोई नया शैम्पू आ गया या कोई नया सोप आ गया, उस केस में भी आपके रैक जॉबर्स आ जाते हैं जो कि ग्रोसरी स्टोर्स में खड़े होते हैं, वो प्रोडक्ट को मार्केट भी कर रहे होते हैं, वो डिस्प्लेस भी बना रहे होते हैं, वो लोगों से कस्टमर से बातचीत भी कर रहे होते हैं, उनको अर्ज भी कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट को ट्राई करें, देखें कि वो कैसी है और कैसी नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज योर रैक जॉबर्स। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ होलसेलर्स दैट यू हैव आर कॉल्ड एज योर मर्चेंट होलसेलर्स, एंड मर्चेंट होलसेलर्स की आगे फर्दर 4 कैटेगरीज होती है। उसमें आपके फुल सर्विस होलसेलर्स आते हैं, उसमें आपके लिमिटेड फंक्शन होलसेलर्स आते हैं, उसमें आपके ड्रॉप शिपर्स आते हैं और उसमें आपके रैक जॉबर्स आते हैं। Now the second type again that you have are agent and brokers. Agent and brokers के बारे में हम already पहले भी बात कर चुके। Wholesalers हमने अभी डिस्कस कर लिया कि आपके 4 डिफरेंट टाइप के wholesalers होते हैं। Next is your agent and brokers. Again इस point in time पर हम अब क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स को पहले डिस्कस कर लिया। हमने कहा इंटरमीडियरीज आपके वेरियस टाइप के होते हैं, इंटरमीडियरीज आपके होलसेलर्स भी होते हैं, हमने होलसेलर्स की आगे फर्दर कैटेगरीज पढ़ ली। अब हम एजेंट एंड ब्रोकर्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। नाउ एजेंट एंड ब्रोकर्स आर इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि एक प्रोड्यूसर को या एक मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज योर एजेंट एंड ब्रोकर्स जो कि किसी कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को, किसी मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करेंगे। दीज एजेंट एंड ब्रोकर्स वर्क ऑन अ कमीशन। सो when these agent and brokers said that for every unit sold we're going to have we're going to take a 5% commission, वो जो अपनी अर्निंग है या जो एजेंट एंड ब्रोकर्स को जो पैसे मिलते हैं वो कमीशन बेस्ड होते हैं कि जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना ज़्यादा कमीशन होगा, जितनी कम सेल्स होंगी उतना कम कमीशन होगा। Again, these agent and brokers do not take ownership or possession of a particular product or a good. Possession और ownership agent और brokers की नहीं होती, वो सिर्फ कंपनी को, प्रोड्यूसर को और मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं टू द होलसेलर्स, टू द रिटेलर्स, टू द कस्टमर्स, राइट? ताकि जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ अपनी प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पर फोकस कर सके और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ या मार्केटिंग की तरफ उसका जहन ना जाए।
These agent and brokers have extensive knowledge of the market. उनको exactly पता होता है कि मार्केट की नीड्स क्या हैं, उनको exactly पता होता है कि मार्केट की वांट्स क्या हैं, उनको पता होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. And these agents and brokers have specialized knowledge about the product as well. Now they also provide services such as shelf and display merchandising and advertising layouts as well. Agent and brokers sometimes in addition to interacting with the intermediaries, ये भी करते हैं कि जी वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, वो शेल्फ लेआउट के बारे में भी बता रहे होते हैं कि जी शेल्फ को इस तरीके से रखा जाए, इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से डिस्प्ले करा जाए. और एडवर्टाइजिंग के बारे में भी बात करते हैं कि जी एडवर्टाइजिंग जो है वो कैसे करनी है, विच इज़ द बेस्ट वे ऑफ एडवर्टाइजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. की बैनर कहाँ लगाया जाए, इसको कहाँ रखा जाए, ये सारी चीज़ें भी आपका एजेंट और ब्रोकर करता है. सो बेसिकली आपका जो एजेंट और ब्रोकर है, दे बेसिकली रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कंपनी, दे हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द मार्केट, दे डू नॉट take ownership and possession of a company, and they work on commission. Next are your e-intermediary. Now e-intermediary जो हैं वो कौन लोग हैं? E-intermediaries are basically intermediaries जो कि इसलिए इन्वॉल्व हुए हैं क्योंकि आपका e-बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, या अब आपका इंटरनेट सेल्स जो है या इंटरनेट बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया. लॉट ऑफ पीपल फील के जी मार्केट में जाएं, फॉर एग्जांपल आई हैव 2 kids, अब मैं मार्केट में कहाँ जाऊँ अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर, कहाँ लिए फिरती रहूँ, उनका शोर, उनका हंगामा, सब चीज़ें बर्दाश्त करने से बेहतर है कि व्हेन दे स्लीप एट नाइट आई यूज़ माई इंटरनेट, आई गो ऑन अ शॉप, आई बाय ऑनलाइन एंड द प्रोड्यूसर डायरेक्टली डिलीवर्स द थिंग टू माई डोर स्टेप. सो इस प्रोसेस की वजह से, इस पर्टिकुलर ट्रेंड की वजह से, जहाँ पर मोर एंड मोर पीपल आर inclined to shop through the internet, और more and more people are inclined to do e-business, आपके e-intermediary जो हैं वो evolve हुए हैं. Now e-intermediary के 2 functions हैं. First आप collect information about sellers for consumers. E-intermediaries are those people जो कि multiple producers की प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कंज्यूमर के लिए. तो जब मैं ई इंटरमीडियरी के पास जाऊंगी और मैं कहती हूँ जी आई नीड अ पेयर ऑफ ईयरिंग्स, सो जितने भी प्रोड्यूसर्स ईयरिंग्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे उन सब प्रोड्यूसर्स की प्राइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर एक ई इंटरमीडियरी मुझे प्रोवाइड करेगा. सो ई इंटरमीडियरी का फंक्शन क्या है? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सेलर्स फॉर कंज्यूमर्स एंड टू डिलीवर इंटरनेट प्रोडक्ट्स टू द बायर्स. सेकेंड फंक्शन ऑफ द इंटरमीडियरी कैन बी कि जी producers and manufacturers can use e-intermediaries to deliver the product directly to the customer. So इस केस में आपका प्रोड्यूसर जो है वो ई इंटरमीडियरी को प्रोडक्ट भेजता है और ई इंटरमीडियरी जो है वो आपके कस्टमर को आगे प्रोडक्ट जो है वो सेल ऑफ करता है. ना ई इंटरमीडियरीज बेसिकली आपके 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट आप आर सिंडिकेटेड सेलर्स. सिंडिकेटेड सेलर्स आर दोज पीपल और दोज वेबसाइट्स जहाँ पर the one website offers another a commission for referring a customer. For example, let's say कि मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, ठीक हो गया. अब मेरी ट्रैवल एजेंट की जो वेबसाइट है उसमें एक रेंट कार का मैंने एक और कंपनी जो कि रेंट कार करती है, मैंने उसका अपनी वेबसाइट पर ऐड दिया है. अब जो लोग मेरी ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट पर आकर अपने ट्रैवल प्लान्स बनाते हैं और मेरी वेबसाइट पर आकर जब वो देखते हैं कि जी अच्छा यहाँ पर तो रेंट कार भी अवेलेबल है और मेरी वेबसाइट के थ्रू वो उस रेंट कार की कंपनी पर जाकर वो वहाँ से रेंट कार की सर्विसेज भी ले लेते हैं, तो वो रेंट कार वाले जो हैं वो मेरी कंपनी को कमीशन देंगे. कमीशन क्यों देंगे? बिकॉज मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट पर उस रेंट कार कंपनी को इजाज़त दी कि वो अपना बैनर या अपना एड प्लेस कर सकें. और सिंस ये कस्टमर्स मेरी वेबसाइट पर आए थे और मेरी वेबसाइट को यूज़ करते हुए उन्होंने ये एड उस रेंट कार का देखा और फिर वो रेंट कार की वेबसाइट पर गए और उन्होंने रेंट कार की सर्विसेज हासिल की, इसलिए वो रेंट कार की जो वेबसाइट है और रेंट कार की जो कंपनी है वो मेरी कंपनी को एक कमीशन देगी. सो सिंडिकेटेड सेलर्स आर दोस व्हेन वन वेबसाइट ऑफर्स अनदर वेबसाइट अ कमीशन फॉर रेफरिंग कस्टमर्स. सो उस रेंट कार की जो कंपनी है उसकी वो सेल्स जो मेरी वेबसाइट की वजह से हुई हैं या मेरे वेबसाइट पर जो रेंट कार का एड था उसकी वजह से हुई हैं, उन कस्टमर्स की कमीशन वो मुझे देगा. ऑन दी अदर हैंड जो कस्टमर्स डायरेक्टली उस रेंट कार ऑर्गेनाइजेशन पर गए, उस रेंट कार कंपनी पर गए, उन कस्टमर्स पर वो रेंट कार कंपनी जो है
मुझको कमीशन नहीं देगी. सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ सिंडिकेटेड सेलर्स. सेकंड आप शॉपिंग एजेंट्स. शॉपिंग एजेंट्स आर दोज पीपल, जिस तरह मैंने आपको साइट पे भी नजर आ रहा होगा, प्राइसेस या pricescan.com. अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यू टेल देम दैट यू वांट टू बाय शूज साइज 12. जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन शूज फॉर वुमेन साइज 12 मैन्युफैक्चर कर रही होगी, प्राइस स्कैन सब कंपनीज पर जाएगा, शूज़ निकालेगा, शूज़ की प्राइसेस निकालेगा और मेरे पास वो सबको दिखा देगा, सो दैट आई कैन कंपेयर वन शूज़ which is being produced by one company with another shoe which is being produced by another company. So that is what shopping agents do. कि जी आप एक प्रोडक्ट कैटेगरी बता देते हो, आप स्पेसिफाई कर देते हो कि आपने कौन सी गुड खरीदनी है. अब जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन वो गुड बनाती होगी एनीवेयर, वो वेबसाइट उस जगह से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगी और आपको कंपैरिजन पर्पसेस के लिए आपके पास कस्टमर के पास ले आएगी कि जी आपकी जो आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो ये कंपनी भी बना रही है इस प्राइस पे, वो ये कंपनी भी बना रही है इस प्राइस पे, वो ये कंपनी भी बना रही है इस प्राइस पर. उसको हम कहते हैं शॉपिंग एजेंट्स. एंड फाइनली यू हैव बिजनेस टू बिजनेस ब्रोकर्स. बिजनेस टू बिजनेस ब्रोकर्स आर जहाँ पर आप इंटरनेट के थ्रू आपके ब्रोकर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल यूज़र्स को प्रोड्यूसर्स के साथ मैच करते हैं. आप एक इंडस्ट्रियल यूज़र हैं, आपको एक चीज़ चाहिए, आप बिजनेस टू बिजनेस ब्रोकर्स के पास जाते हैं, इंटरनेट को यूज़ करके या ईमेल के थ्रू इनसे कांटेक्ट करते हैं, और जो आपका बिजनेस टू बिजनेस ब्रोकर होता है वो आपको आपकी नीड के मुताबिक, आपके वांट के मुताबिक, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको एक ऐसे प्रोड्यूसर के साथ मैच कर देता है जो कि वही प्रोडक्ट्स या वही गुड्स बना रहा है जो कि आपको चाहिए हो. सो ई इंटरमीडियरी जो होते हैं वो बेसिकली आपके अगेन दे हैव इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव यूज ऑफ ई बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंटरनेट फॉर डूइंग बिजनेस. और आपके ई इंटरमीडियरीज के दो फंक्शंस होते हैं और आपके ई इंटरमीडियरीज की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें सिंडिकेटेड सेलर्स भी होते हैं, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस ब्रोकर्स भी होते हैं और जिसमें शॉपिंग एजेंट्स भी होते हैं. The next thing that we're going to do is we're going to discuss retailers. कि जी retailers कौन होते हैं, retailers की different types क्या होती हैं और retailers के different functions क्या होते हैं. Retailers की definition हम already आपको दे चुके हैं. Retailer क्या होता है? If I ask you कि जी बताओ कि retailer और wholesaler में क्या फ़र्क? Think. Yes, a retailer is an organization or a person or a company which buys things from either the producer or from the retailer and sells directly to the end user or to the customer. So the most important aspect of a retailer is कि retailer sell करता है चीज़ directly to the customer. जो end user होता है, जो customer है, उसको retailer चीज़ आपकी sell करता है. Generally, you have different types of retailers. Your first type of retailers are product line retailers. Product line retailers में आपके different types के, for example, department stores या supermarkets या speciality stores. These are all examples of your product line retailers. Now, department stores are those who have broad product lines. For example, आप generally किसी भी department stores में चले जाएं. If you're living in Lahore, तो आप HKB में चले जाएं. That's a departmental store. या आप पॉटपूरी में चले जाएं. That's a departmental store. वहाँ पर आपकी different categories होती है with respect to product lines. Shoes, furnitures, ladies clothing, men's clothing, children's clothing, artificial flowers, cosmetics, jewelry. So आपकी product line के reference से आपकी various categories बनती हैं और आप जाकर जो भी आपको खरीदना हो आप उसको खरीदते हैं. Now Potpourri and HKB are examples of your product line retailers. On the other hand, as opposed to departmental stores, you have supermarkets. Supermarkets are those जहाँ पर आपके related products के department होते हैं. For example, food. For example, household products. अगर आप macro जाते हैं या अगर आप hyperstar जाते हैं, so that's a supermarket. जहाँ पर आपके with reference to related products आपकी categories बनी होती हैं. Food items एक side पर होते हैं. आपके जो
सोप्स होते हैं वो एक साइड पर होते हैं, आपके हाउस होल्ड आइटम्स एक साइड पर होते हैं, आपके गार्डनिंग आइटम्स दूसरी साइड पर होते हैं. सो रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आप ग्रुप टुगेदर कर देते हैं एक सुपरमार्केट में, और फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रेफरेंस से आप अपने पूरे सुपरमार्केट को डिवाइड करते हैं with reference to the product categories that you have. The third type of product line retailers that you have are sometimes called as speciality stores. Now question is कि speciality stores क्या होते हैं? Speciality stores वो होते हैं जो कि एक single product line को target करते हैं या single product line को sell करते हैं. So those are called as your speciality stores. For example, if you go to a designer outlet, so that particular designer outlet will only sell a particular type of clothes, या वो सिर्फ एक ही designer के कपड़े जो हैं वो sell करेंगे. So that is what we call as a speciality store. Similarly, if one has a specialty store जहाँ पर watches sell करती हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घड़ियाँ sell होती हैं, so that can also be called as a speciality store. जहाँ पर सिर्फ one line of related products, you can only buy watches, चाहे वो clocks हों, चाहे वो personal wear की हों, individual घड़ियाँ हों, या वो wall clocks हों, आप सिर्फ घड़ियाँ ही उस speciality store से खरीद सकते हैं. So that is what we call as a speciality store. Again, जिस तरीके से अगर आप cotton and cotton की बात करें, that is what a speciality store is, which basically sells clothing items with reference to men. चाहे वो ties हों, चाहे वो trousers हों, चाहे वो shirts हों, चाहे वो wedding के reference से शेरवानीज हों, suits हों, cotton and cotton will become a speciality store because they are selling one line of related products. So आपकी जो product line retailers होते हैं उसमें आपके departmental stores भी आते हैं, उसमें आपकी सुपरमार्केट्स भी आती हैं, और उसमें आपके स्पेशलिटी स्टोर्स भी आते हैं. देन यू हैव योर बार्गेन रिटेलर्स. नाउ बार्गेन रिटेलर्स आर अगेन डिफरेंट टाइप्स एज वेल. बार्गेन रिटेलर्स में सबसे पहले आपके डिस्काउंट हाउसेज आते हैं. डिस्काउंट हाउसेज आर बेसिकली दोज शॉप्स, दोज रिटेल आउटलेट्स जो आपको एक पर्टिकुलर प्राइस से कम प्राइस पर चीज़ सेल कर रहे होते हैं. सो दैट दोज आर कॉल्ड एज योर डिस्काउंट हाउसेज, जहाँ पर आप जाते हैं और आप एक रिड्यूस प्राइस पर चीज़ को ख़रीद सकते हैं. देन यू हैव ए कैटलॉग शोरूम्स. कैटलॉग शोरूम्स में क्या होता है कि जी आपका एक फुल स्केल डिस्प्ले नहीं होता, हर जगह पर आपको हर चीज़ नज़र नहीं आ रही होती. व्हाट यू डू व्हेन यू गो टू अ कैटलॉग शोरूम, आपको जो सेल्स क्लर्क है वो आपको डिफरेंट कैटलॉग सिखा देता है कि ये खोलें, ये खोलें, ये खोलें, ये खोलें. खोल कर आप उस कैटलॉग को देखते हो, तस्वीरें देखते हो, पढ़ते हो, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, यू से अच्छा मुझे ये चीज़ पसंद है. आप सेल्स क्लर्क को बताते हो कि जी आई नीड दिस, ये कैटलॉग में ये नंबर है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए. वो सेल्स क्लर्क वापस अपने स्टोर रूम में जाता है, आपके लिए चीज़ लेकर आ जाता है, और आप कैटलॉग की बेसिस पर उस रिटेलर से वो चीज़ खरीद लेते हो. उसको आप कैटलॉग शोरूम्स कहते हैं. देन यू हैव फैक्ट्री आउटलेट्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू फैसलाबाद, तो वहाँ पर आपको चंदवन की भी फैक्ट्री आउटलेट मिलती है, वहाँ पर आपको निशात लिनन्स की भी फैक्ट्री आउटलेट मिलती है. फैक्ट्री आउटलेट अगेन सिंस द फैक्ट्री आउटलेट इज़ ओन्ड बाय द फैक्ट्री, तो आप कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और वही आपके लिए रिटेल आउटलेट्स भी बन जाते हैं जो कि फैक्ट्री ओन्ड होती हैं. वहाँ पर अगेन आपको प्राइसेस कम होती हैं. देन यू हैव वेयर हाउसिंग और होलसेल क्लब. वेयर हाउसिंग एंड होलसेल क्लब्स आर दोस्त जहाँ पर आप मेंबरशिप बेस्ड सेलिंग करते हो. अगर आप मेंबर हैं तो आपको इस होलसेल क्लब से आप चीज़ खरीद सकते हो, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आपको चीज़ नहीं मिल सकती है. सो दोज आर कॉल्ड एज योर वेयर हाउस और होलसेल क्लब. देन यू हैव योर कन्वीनियंस स्टोर्स. कन्वीनियंस स्टोर्स आर दो स्टोर्स जो कि आपके कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट होते हैं. कन्वीनियंट इन टर्म्स ऑफ देयर लोकेशन, कि वो बहुत ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, बड़े करीब होंगे, वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगे, या उनके एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स होंगे. रात 2 बजे भी जाएंगे तो वो कन्वीनियंस स्टोर खुला होगा और आप वहाँ से जाकर शॉपिंग कर सकते हैं. एंड अगेन अ कन्वीनियंस स्टोर विल हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल. आप मल्टीपल चीज़ें, मिल्क, ब्रेड, मेडिसिन, जो भी चीज़ चाहें आप उनको वहाँ से ख़रीद सकते हैं. सो जो आपके बार्गेन रिटेलर्स हैं वो इस मल्टीपल टाइप्स के होते हैं. वो डिस्काउंट हाउसेस की फॉर्म में होते हैं, वो कैटलॉग शोरूम्स की फॉर्म में होते हैं, वो फैक्ट्री आउटलेट के फॉर्म्स में होते हैं, वो होलसेल क्लब की फॉर्म में होते हैं, या वो कन्वीनियंस स्टोर्स की फॉर्म में होते हैं. देन यू हैव नॉन स्टोर रिटेलिंग या इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग. अगेन नॉन स्टोर रिटेलिंग इज़ बेसिकली जहाँ पर आपकी एक फ़िज़िकल लोकेशन नहीं होती है, आपकी एक रिटेल आउटलेट नहीं होती है, आप किसी फिज़िकली जगह पर बैठे नहीं होते, आपका डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन स्टिल यू आर एबल टू सेल योर प्रोडक्ट. नॉन स्टोर रिटेलिंग मल्टीपल टाइप्स या मल्टीपल तरीक़ों से हो सकती है. फर्स्ट अप इज़ अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स रिटेलिंग, वेयर बाय द
producer will directly get in touch with the customer and take orders from the customer. Then you have mail order catalog. कितनी दफ़ा होता है कि आप घर में बाय पोस्ट आपके पास एक कैटलॉग आता है, आप उस कैटलॉग में से चीज़ें पसंद करते हैं, वापस उसी को वापस प्रोड्यूसर के पास भेजते हैं और आप मेल ऑर्डर कैटलॉग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ टाइम फॉर दोज ऑफ यू जो कि रीडर डाइजेस्ट पढ़ते हैं, रीडर डाइजेस्ट में आपको अंदर से ही एक फॉर्म मिलता है जो कि एक बुक शॉप का होता है. जैसे कि जी अगर आपको 1 साल के लिए रीडर डाइजेस्ट की सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इसी फॉर्म को फिल करके हमें पोस्ट कर दीजिए, एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वील स्टार्ट सेंडिंग यू रीडर डाइजेस्ट एट योर प्लेस. अगेन इट डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट नीड टू सेंड मनी. आपको वहाँ पर पेमेंट की टेक्निक्स भी होती हैं. आपको पे ऑर्डर का उसमें लिखा होता है कि आप उसमें पे ऑर्डर इनक्लोज करें और ये फॉर्म फिल करें और दोनों चीज़ें हमारे पास वापस मेल बैक कर दें, एंड आपका ऑर्डर हो जाता है और आपको चीज़ डिलीवर हो जाती है. So that is what we call as mail order catalog. Then you have telemarketing. पाकिस्तान में तो relatively कम होता है, बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा होता है. बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आपके relatives बाहर हैं, आप उनको फ़ोन कर रहे हैं और कोई उठा ही नहीं रहा, घंटी बजे जा रही है, कोई उठा नहीं रहा. फिर जब आपकी बहन या भाई उठाता है तो कहता है यार मैं समझा था किसी टेलीमार्केटर का फ़ोन है, मुझे नहीं पता चला कि आपका फ़ोन था. So that is what telemarketers are. Telemarketers are, they give you a call at your home number and then they explain to you कि जी प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, and then they tempt you and motivate you to buy a particular product. Direct selling is door to door. घंटी बजती है, दरवाज़ा खोलते हैं, आगे एक बंदा खड़ा होता है, वो जी ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, ये वैल्यू एडिशन होगी, इसकी गारंटी क्या है, वारंटी क्या है. आप दरवाज़ा बंद करें, फिर से दरवाज़ा खोलें तो फिर वो बंदा वहीं खड़ा होता है, राइट. सो दैट इज़ डोर टू डोर सेलिंग, जहाँ पर आप 1 to 1 फेस टू फेस डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं एंड द सेलर इज़ ट्राइंग टू मोटिवेट यू टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो नॉन स्टोर रिटेलिंग जो है वो इन 4 तरीक़ों से हो सकती है: डायरेक्ट रिस्पॉन्ड रिटेलिंग, मेल ऑर्डर कैटलॉग, टेलीमार्केटिंग और डोर टू डोर या 1 to 1 या फेस टू फेस सेलिंग. On the other hand, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग के डिफरेंट तरीके क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग है जब आप किसी इंडिविजुअल को हार्ड कॉपी नहीं भिजवाते. फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने अभी नॉन डायरेक्ट रिटेलिंग की बात की या नॉन स्टोर रिटेलिंग की बात की, तो उसमें यह था कि भाई आप किसी के घर में एक कैटलॉग हार्ड कॉपी फिजिकल चीज़ भिजवा देते एक बुक फॉर्मेट में. ऑन दी अदर हैंड, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग ये होती है कि जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली या इंटरनेट के थ्रू रिटेलिंग करते हैं. उसमें सबसे पहले ई कैटलॉग होती है. ई कैटलॉग इज दैट यू गोइंग टू रिसीव अ मेल, और उस ईमेल में आपके पास एक डॉक्यूमेंट खुलेगा जिसमें प्रोडक्ट्स भी होंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन भी होगी, उसकी प्राइसेस भी होंगी. आपको कोई चीज़ पसंद आए तो आप उस प्रोडक्ट की या उस कैटलॉग की बेस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज ई कैटलॉग्स. Second type of electronic retailing is electronic storefront. Electronic storefront is basically that when you go to any website, for example, अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स की बात करें, अगर आप गैप की वेबसाइट पर चले जाएं या बनाना रिपब्लिक की वेबसाइट पर चले जाएं या लीवाइस की वेबसाइट पर चले जाएं, आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट होता है. उधर एक ऑप्शन आ जाती है ऑनलाइन शॉपिंग की. आप ऑनलाइन शॉपिंग पर जाते हैं, आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, उसको अपने शॉपिंग बैग में डालते हैं, एंड में अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देते हैं और आपकी शॉपिंग प्रोसेस हो जाती है और आपका जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली आपको चीज़ जो है वो आपके डोर स्टेप पर या आपके घर पर मेल कर देता है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट. नेक्स्ट अप साइबर मॉल्स. साइबर मॉल्स आर अगेन, व्हाट इज अ मॉल? मॉल इज बेसिकली एक प्लेस होती है. इफ यू लिविंग इन कराची तो आपके लिए बहुत कॉमन होगी, राइट. सो व्हेन यू गो टू पार्क टावर्स, दैट्स अ मॉल, राइट. व्हाट हैपेंस, इट बेसिकली एक जगह होती है, मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, मल्टीपल कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपने स्टोर्स वहाँ खोले होते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से अगेन मॉल की एक फिजिकल लोकेशन होगी, एक चीज़ है, राइट, एक टैंजिबल चीज़ है जहाँ पर मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल स्टोर्स, मल्टीपल चीज़ें बेच रहे होते हैं. साइबर मॉल इज द सेम कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट टैंजिबिलिटी का फैक्टर ख़त्म हो जाता है. आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मॉल होती है जहाँ पर आप एक वेबसाइट पर जाएंगे और मल्टीपल चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी. आपको कपड़े भी अवेलेबल होंगे, आपको शूज़ भी अवेलेबल होंगे, आपको ज्वेलरी भी अवेलेबल होगी, आपको कॉस्मेटिक्स भी अवेलेबल होंगे, आपको न्यूट्रिशियस या न्यूट्रिशियस फूड की चीज़ें भी अवेलेबल होंगी, आपको हेयर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगी, आपको नेल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगे, आपको टॉयज़ भी अवेलेबल होंगे. इलेक्ट्रॉनिकली वो एक मॉल होगी, उसकी फिजिकल लोकेशन नहीं होगी, वो टैंजिबल नहीं होगी, लेकिन आप
on your computer screens, on your laptop screen, on the screens of your tablets, आपके लिए वो मॉल हो गया. आप एक ही वेबसाइट पर जाकर मल्टीपल चीज़ें या मल्टीपल टाइप की प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, देख सकते हैं. एंड देन यू हैव इंटरैक्टिव मार्केटिंग एज वेल. इंटरैक्टिव मार्केटिंग इज बेसिकली जब आप एक वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर पिक्चर्स भी होती हैं, वहाँ पर टूर्स भी होते हैं, वहाँ पर वॉइस गाइडेड मैसेजेस भी होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे करना है. इसको आप फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू गो टू अ वेबसाइट, लेट्स से आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, स्पेशली अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं, वो इंटरैक्टिव मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको उस फर्नीचर आइटम को हर एंगल से देख सकते हैं. आपको फ्रंट एंगल भी दिखाएंगे, आपको बैक एंगल भी दिखाएंगे, आपको साइड एंगल भी दिखाएंगे, आपको ऊपर से भी दिखाएंगे, आपको नीचे से भी दिखाएंगे कि जी प्रोडक्ट है कैसी, उसका कलर कैसा है, उसकी चीज़ कैसी है. आपको पीछे कमेंट्री भी चल रही होगी जो कि प्रोडक्ट आपके लिए एक्सप्लेन कर रही होगी. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चैट रूम में जाकर कोई क्वेश्चन टाइप करेंगे तो वहाँ जो मॉडरेटर बैठा होगा वो रियल टाइम में आपको आपके क्वेश्चन का जवाब भी दे देगा यूजिंग द इंटरनेट और इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज इंटरैक्टिव मार्केटिंग. जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग की बात करते हैं तो उसमें ये 4 डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं: ई कैटलॉग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट्स, साइबर मॉल्स एंड इंटरैक्टिव मार्केटिंग. लास्टली इज़ वीडियो मार्केटिंग. वीडियो मार्केटिंग इज अगेन इज कि एक वीडियो को यूज़ करते हुए आप अपनी चीज़ की मार्केटिंग करें. अगेन वीडियो कैन बी फॉर डिफरेंट थिंग्स, फॉर डिफरेंट पर्पसेस. वीडियो कैन थ्रू अ वीडियो आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. अच्छा, वीडियो मार्केटिंग में लॉट ऑफ टाइम पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है. अगर आपके घर में केबल टेलीविजन आता है तो एक चैनल तो आई एम श्योर वुड बी डेडिकेटेड टू वीडियो मार्केटिंग, जो कि आपको वेरियस फूड प्रोसेसर्स और सब्जी काटने की चीज़ें और डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस, वो आपको पूरा एक वीडियो पूरी होती है. वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आपके होस्ट होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि जी ये फूड प्रोसेसर है, इसका वेट इतना है, इसकी प्राइस इतनी है, इसको ऐसे खोलेंगे, इसको इधर से दबाएंगे तो प्याज ऐसे कट जाएगी, इसको ऐसे करेंगे तो प्याज के साथ ये हो जाएगा. एंड दे विल एक्सप्लेन टू यू हाउ दैट प्रोडक्ट कैन बी यूज, एंड दे विल एक्सप्लेन टू यू हाउ दैट गुड कैन बी यूज, एंड दे विल एक्सप्लेन टू यू कि उसकी प्राइस क्या है, उसकी वारंटी क्या है, उसकी गारंटी क्या है, उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है. सो दैट इज व्हाट वीडियो मार्केटिंग इज, एंड अगेन it is part of electronic retailing. So basically, how many types of electronic retailing that we have? We have 5 different types or 5 different ways through which you can electronically retail और आप retailing कर सकते हैं using the electronic media या using the internet. Now the final part of our chapter or the last portion of our lecture is physical distribution. Physical distribution basically means कि आप अपनी product को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे लेकर जा रहे हैं. फिजिकली प्रोडक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव होगी. इसमें आपकी वेयर हाउसिंग भी आएगी कि आप किस किस्म का वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं. इसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स भी आएंगे कि आप एयर यूज़ कर रहे हैं या वाटर यूज़ कर रहे हैं या ट्रेन यूज़ कर रहे हैं या कार यूज़ कर रहे हैं. वो सारे मेथड्स जिसके थ्रू आपकी प्रोडक्ट या गुड एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर होती है या मूव होती है, उसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. जब आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे उसमें सबसे पहले हम वेयर हाउसेस की बात करेंगे. वेयर हाउसेस इज बेसिकली दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट पर्टिकुलर रूम और दैट पर्टिकुलर जगह जो होती है जहाँ पर आप अपनी इन्वेंट्रीज को या आप अपनी रॉ मटेरियल को या आप अपनी फिनिश्ड गुड को स्टोर करते हैं सो दैट इट कैन बी सोल्ड लेटर ऑन. नाउ वेयर हाउसेज जनरली जो हैं वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं. द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ वेयर हाउस दैट वी हैव इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्राइवेट वेयर हाउस. अ प्राइवेट वेयर हाउस इज जनरली ओन्ड बाय सिंगल मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर. एक मैन्युफैक्चरर या होलसेलर या रिटेलर उस वेयर हाउस को ओन करता है. या जब एक मैन्युफैक्चरर या रिटेलर या होलसेलर एक वेयर हाउस को ओन करता है तो उसको आप प्राइवेट वेयर हाउस कहते हैं. इसका मतलब यह है कि वही मैन्युफैक्चरर ही अपना वेयर हाउस यूज करेगा. नोबडी एल्स कैन यूज दैट वेयर हाउस. अगर वो मैन्युफैक्चरर का वेयर हाउस है तो वही मैन्युफैक्चरर यूज करेगा. अगर वो रिटेलर का वेयर हाउस है तो वही रिटेलर यूज करेगा. अगर वो होलसेलर का वेयर हाउस है तो सिर्फ वही होलसेलर यूज करेगा. सो सिर्फ वही बंदा जो कि ओन करता है उस वेयर हाउस को उसको यूज कर सकता है. On the other hand, you have a public warehouse as well. A public warehouse is again,
इट इज़ ओन्ड बाय समबडी बट इट कैन बी यूज्ड बाय समबडी एल्स. सो मैं एक वेयर हाउस को ओन करती हूँ, वो पब्लिक वेयर हाउस है, और XYZ मेरे पास आके कहता है कि जी मुझे आपका वेयर हाउस रेंट करना है 1 महीने के लिए, तो मैं उससे निगोशिएट करती हूँ और 1 महीने के लिए उसको अपना जो वेयर हाउस है वो रेंट आउट कर देती हूँ या उसको अपना वेयर हाउस यूज़ करने की इजाज़त दे देती हूँ. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ पब्लिक वेयर हाउस. अ स्मॉल एग्जाम्पल, अगेन आई एम गोइंग अ लिटिल ऑफ ट्रैक राइट नाउ, इज कि जो आपका लेट्स से जो आपका घर है, अगर वो प्राइवेट घर है ना तो वो आपका घर है, आप उसमें रहते हैं, आप उसमें यूज़ करते हैं. लेकिन जब आप उस घर को रेंट आउट कर देते हैं तो वो फिर आपका आपने क्या किया, वो पब्लिक वेयर हाउसिंग के बराबर है कि घर तो आपका है लेकिन आप उसमें रह नहीं रहे, आप यू गिविंग परमिशन टू समबडी एल्स टू लिव इन दैट हाउस एंड टू यूज दैट हाउस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट पब्लिक वेयर हाउसेज आर. सो प्राइवेट वेयर हाउसेज आर जो बंदा है जो ओन करता है वही उसको यूज करता है. पब्लिक वेयर हाउसेज ओन एक बंदा करता है, यूज मल्टीपल लोग या डिफरेंट लोग कर सकते हैं. Then you have storage warehouses. Storage warehouses are those warehouses जो कि exclusively storage के लिए यूज़ करते हैं. Storage पे ऐसी जो कि long term, excessive या extended periods की storage हो. So storage warehouses are those warehouses जहाँ पर आप long term storage करते हैं, लंबे अरसे के लिए चीज़ों को store कर रहे होते हैं. For example कि अब let's say कि मेरे husband की posting होगी है अमेरिका और मैंने अपने घर का सामान लेकर नहीं जाना, तो मैं storage warehouse यूज़ करूँगी और storage warehouse में मैं अपने पूरे घर का सामान लॉक करके बंद करके तक लगाकर 5 साल के लिए अमेरिका चली जाऊंगी. सो दैट इज गोइंग टू बी अ स्टोरेज वेयर हाउस जहां पर सिर्फ स्टोरिंग पर्पसेस के लिए प्रोडक्ट्स या गुड्स को रखा जाता है, और स्टोरिंग भी एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए स्टोरेज होती है. Finally, you have distribution centers. Distribution centers, as opposed to your storage warehouses, again वो चीज़ को प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं for short period of time. So short term storage for products whose demand is constant and high, that is what we call as a distribution center. सिर्फ एक distribution center एक जगह होती है, एक warehouse होता है जहाँ पर प्रोडक्ट आती है, आधा दिन, 1 दिन, 4 घंटे, 6 घंटे रुकेगी और आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में इसलिए आती है बिकॉज एक जगह से आ रही होती है, रुकती है, दूसरे बंदे उसको कलेक्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आर जनरली यूज फॉर वेरी शॉर्ट टर्म टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आर यूज फॉर दोज प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड बहुत हाई होती है और कॉन्स्टेंट डिमांड होती है. कॉन्स्टेंट डिमांड का मतलब है कि प्रोडक्ट आती है, रुकती है, चली जाती है. ज़्यादा लंबे अरसे के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में प्रोडक्ट या गुड जो है वो नहीं रुकती है. सो आपके ये 4 डिफरेंट टाइप्स के वेयर हाउसेज हैं. पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, स्टोरेज भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी हो सकता है. नाउ जब हम वेयर हाउसिंग की बात करेंगे तो फिर वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी होती है. इट्स नॉट कि आप फ्री में अपनी प्रोडक्ट्स को या गुड्स को वेयर हाउसेज में रखवाएंगे. उसमें वेयर हाउस का रेंट भी देना होता है, वेयर हाउस की सिक्योरिटी भी होती है. बट प्राइमरली 2 डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट होती है जिनको हम वेयर हाउस की कॉस्ट में शामिल करते हैं. फर्स्ट अप इज योर इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेसिकली कि आप कंटिन्यूसली देख रहे होते हो, बंदा हायर करते हो, कितनी इन्वेंट्री है, कितना रॉ मटेरियल है, कितना इस्तेमाल हो गया, किस तरीके से, कितनी आ रही है और कितनी जा रही है. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आती तो ज़्यादा है लेकिन जब अब जाती है तो पता चलता है कम हो गई, या बीच में से चीज़ें चोरी हो गई, बीच में से चीज़ें गायब हो गई. सो इन्वेंट्री कंट्रोल इज, या जो कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेंट्री कंट्रोल इज दैट सिक्योरिटी. अगर आप कहते हैं कि आपने एक बंदा हायर किया जो कि आपके वेयर हाउस को सिक्योर करे, वो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल होगा जो कि ये नज़र रखेगा कि कौन सी चीज़ आई या कितनी चीज़ आई और कितनी चीज़ वापस जा रही है. सो दैट इज़ व्हाट इन्वेंट्री कंट्रोल इज. सेकंड इज मटेरियल हैंडलिंग. मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज कि आप जो मटेरियल या जो इन्वेंट्री उस वेयर हाउस में आती है या जो रॉ मटेरियल उस वेयर हाउस में आता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, किस The second type of cost other than the inventory cost that we have is something called as a material handling cost. Material handling cost is कि जो material, चाहे वो raw material हो, चाहे वो completed product हो, चाहे वो कोई चीज़ जो उस warehouse में आ रही है, आप उसको handle कैसे करेंगे. Now you need to understand कि
एक वेयर हाउस में मल्टीपल टाइप की प्रोडक्ट्स आती हैं, उसके मल्टीपल साइजेस होते हैं। अगर आपकी मटेरियल हैंडलिंग सही किस्म की नहीं है तो जो आपकी स्पेस यूटिलाइजेशन है वो भी सही नहीं होगी। आप कम चीज़ों को रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस यूज़ करोगे। सो मटेरियल हैंडलिंग बेसिकली कि आपकी किस साइज़ की, किस वेट की, किस चीज़ की प्रोडक्ट आपके पास आ रही है और आप उसको किस जगह रखते हैं, किस तरह से रखते हैं कि आप अपनी जो वेयर हाउस की स्पेस है आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। सो दैट इज़ व्हाट योर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज। जब आप मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिटाइजेशन। यूनिटाइजेशन इज स्टैंडर्डाइजिंग द वेट एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक वेयर हाउस है, वहाँ पर हर किस्म की प्रोडक्ट आ रही है, उसका शेप भी अलग है और उसका वेट भी अलग है। जब ये होगा, डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट वेट्स विल रिक्वायर अ लार्जर अमाउंट ऑफ स्पेस। हाउएवर जब आप यूनिटाइजेशन करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक वेट और एक स्पेसिफिक फॉर्म में मटेरियल लेते हैं। लेट्स से कि आप कहते हो कि जी एवरी आइटम दैट विल बी प्लेस्ड इन दिस वेयर हाउस विल बी इनक्लोज्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच विल वे 100 kgs। अगर हर डब्बा रेक्टेंगल होगा और हर डब्बा 100 kgs का होगा तो आप डब्बों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, साइड बाय साइड रख सकते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट होगी। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज यूनिटाइजेशन, एंड यूनिटाइजेशन इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ मटीरियल हैंडलिंग। नेक्स्ट इज कि जी अच्छा, वेयर हाउसिंग की तो आपने बात कर ली कि जी आप किस तरीके से चीज़ को स्टोर करेंगे। चीज़ से मेरा मतलब रॉ मटेरियल भी हो सकता है और चीज़ से मेरा मतलब जो फिनिश गुड है वो भी हो सकती है। लेकिन जो आपकी फिनिश गुड है या जो रॉ मटेरियल है उसको भी तो आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा ना, प्रोड्यूसर से, होलसेलर से, रिटेलर से कंज्यूमर तक आपकी फिनिश गुड को जाना पड़ेगा। सिमिलरली जो रॉ मटेरियल है वो भी आपके प्रोड्यूसर तक आएगा। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ ट्रांसपोर्टेशन मोड फॉर योर गुड्स एंड फॉर योर प्रोडक्ट्स। आप ये नहीं होता कि आप हवा में सोच रहे होते हो कि जी मैं एक लॉजिकल डिसीजन लेते हो कि मैं अपनी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। नाउ व्हाट आर दोज फैक्टर्स व्हिच बेसिकली इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और व्हिच इन्फ्लुएंस द ट्रांसपोर्टेशन मोड व्हिच विल बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट अप कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एयरलाइन को यूज करें दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू द मोस्ट। अगर आप ट्रेन को या रोड्स को यूज करते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू लेस। सबसे पहली फैक्टर या सबसे पहला फैक्टर जो कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन मोड को अफेक्ट करेगा वो कॉस्ट है। आपके पास पैसे हैं या नहीं है, कितने पैसे हैं कि मैं कौन सा मोड यूज करूँ। अगर पैसे ही नहीं है फिर आप एयरलाइन या बाय एयर ट्रैवल के बारे में सोच ही नहीं सकते। सिमिलरली अगर पैसे हैं और तो फिर आप सोचेंगे कि भाई मैं बाय एयर अपना ट्रांसपोर्टेशन करूं। सेकंड इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। एज आई सेड अर्लियर एज वेल, इफ इट इज फ्लावर्स देन यू नीड टू ट्रांसपोर्ट देम वेरी वेरी क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर कोई ड्राई प्रोडक्ट है तो लेट्स से ड्राई फ्रूट्स हैं तो उसमें आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं कि अगर हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते भी लगेंगे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में तो कोई इशू नहीं है। कपड़ा है, थान है कपड़े के, उसमें भी आपको कोई इशू नहीं है, बेशक महीना लग जाए एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई इशू नहीं। गाड़ी है, इफ यू ट्रांसपोर्टिंग कार्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फिर तो कोई मसला नहीं, बेशक 2 महीने लग जाएं आप गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। सिमिलरली लेट्स से दैट यू आर इंपोर्टिंग टेलीविजन्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें तो आपको 4 महीने भी लग जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता। सो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, पेरिशेबल है नहीं है, ख़राब हो सकती है नहीं हो सकती है, अगर कोई प्लांट है उसकी कितनी लाइफ है, अगर कोई और प्रोडक्ट है उसकी कितनी लाइफ है। सो यू नीड टू सी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट टू डिटर्मिन कि आप किस किस्म का ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। लेट्स से कि अगर आपको अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका भेजना है तो आप ट्रेन तो ऑटोमेटिकली आउट हो गई, सिमिलरली रोड भी ऑटोमेटिकली आउट हो गई। अब आप कैसे आप भेजेंगे? सो यू आर लेफ्ट विद एयरलाइन और बाय एयर। सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है एक जगह दूसरी जगह से जहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, आपके जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो चेंज हो सकते हैं। देन अगेन स्पीड, कितने जल्दी आप चीज़ को भिजवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल इफ वी नीड टू सेंड समथिंग वेरी अर्जेंटली,
आप जो है स्मॉल एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल, आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी भिजवानी है लाहौर, आप जो है बाय एयर भिजवा देंगे, PIA का यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, 4, 5, 6, 8 घंटे हैं आपके पास, तो आप डेवू यूज़ कर लेंगे कि डेवू से चीज़ चली जाए। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक चीज़ को कितने जल्दी डिलीवर करना चाहते हैं, कितने स्पीडली डिलीवर करना चाहते हैं, आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो अगेन चेंज होगा। एंड फाइनली कस्टमर वांट्स एंड नीड्स, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को कैसे चाहिए। कस्टमर को अगर अर्जेंट चाहिए है तो आप बाय एयर भेजेंगे, कस्टमर को अगर रेगुलर डिलीवरी चाहिए है तो शायद आप बाय रोड या बाय ट्रेन भेज दें। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ क्विकली द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपके ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है वो चेंज हो सकते हैं। नाउ ये तो हमें डिस्कस कर लिया कि आपके ट्रांसपोर्टेशन मोड्स what are the factors जो कि influence करते हैं transportation modes को। लेकिन now what we're going to do is we're going to discuss what are the various transportation modes available to organizations to transport goods and products from one place to another. First up, trucks. ट्रक्स के थ्रू आप अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और लॉट ऑफ टाइम आप अगर सब्जी मंडी की तरफ जाएं तो आपको ट्रक्स नजर आते हैं जिसमें कॉलीफ्लावर ऊपर से लेकर नीचे तक भरी होती है। सो अगेन बहुत दफ़ा ट्रक्स के थ्रू आपके जो पीचेस के डब्बे हैं वो स्वात से आपके इस्लामाबाद आ रहे होते हैं। सो गुड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्वात टू इस्लामाबाद थ्रू ट्रक्स। Then you have railroads. Railroads is basically train के थ्रू जब आप अपनी चीज़ें, a lot of time जो आपकी गाड़ियाँ हैं या कार्स हैं, कराची से इस्लामाबाद भेजनी हो तो आप ट्रेन्स को यूज़ करते हैं। सिमिलरली बहुत दफ़ा आपका कोई और हैवी मशीनरी हो या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना सामान कराची से इस्लामाबाद भेजना है तो वो रेल रोड्स को यूज़ करती है, ट्रेन्स को यूज़ करती है। देन यू हैव प्लेन्स, FedEx हो गया, DHL हो गया, TCS हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाय एयर आपकी भेजती हैं। अगेन जब आप एयरलाइंस को यूज़ करते हैं या प्लेन्स को यूज़ करते हैं टू ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको आप वो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो बाय प्लेन्स है या बाय एयर है। देन यू हैव वाटर, अब वाटर के थ्रू भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वाटर की जब हम बात करें तो दो एस्पेक्ट आते हैं। एक आता है शिप्स, जहाँ पर आप शिप्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑन द अदर हैंड समटाइम्स यू ऑल्सो यूज़ वाटर एज इन जनरल वाटर, जैसा नहर होती है for transportation. For example, a lot of times logs या जो लकड़ी जो होती है, logs जो होती हैं वो आप पानी में डाल देते हैं। आप ऊपर let's say कि ऐसी जगह पर या ऐसे शहर में डालते हैं जो कि जिसकी समंदर से सतह ऊपर हो, वहाँ से जब पानी नीचे आता है तो ऑटोमेटिकली वो logs उस पानी के साथ, उस नहर के साथ ऑटोमेटिकली दूसरे शहर में पहुँच जाती हैं। A lot of countries use this method of transporting wood from one place to another. And then you have pipelines. Pipelines के through especially जो oil है वो आपका pipelines के through transport होता है, या gas जो है वो आपकी pipelines के through transport होती है। Now आप कौन सा transportation mode use करेंगे? इसमें से सबसे expensive transportation mode जो है वो आपका planes है। Most expensive way of transporting product from one place to another is going to be through air or by planes. However, yes, it is expensive, but it is the quickest way of transporting good. But then again, depending upon कि आपकी type of good, कि अगर आप let's say gas कर रहे हैं तो शायद planes is not a very feasible way of transporting things. शायद pipeline ज़्यादा बेहतर है। But then अगर आप pipelines की बात कर रहे हैं और बीच में समंदर आ गया है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप वापस एयर की तरफ चले जाएंगे। अगर सड़कों का नेटवर्क या रोड नेटवर्क कंटिन्यूसली अवेलेबल है तो आप ट्रक्स पर चले जाएंगे, या आप ट्रेन्स अवेलेबल हैं तो आप रेल रोड पर चले जाएंगे। सो एज वी स्टडीड इन द लास्ट स्लाइड के जी, इन पांचों में से आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है वो सिलेक्ट करते हैं, दैट विल बेसिकली डिपेंड अपॉन कि आपको कॉस्ट कितनी है, या आपके पास पैसे कितने हैं, आपकी टाइप ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, और कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स कितनी हैं। अगर कस्टमर को बहुत जल्दी चाहिए एंड द कस्टमर इज विलिंग टू पे तो आप प्लेन्स यूज़ करेंगे। अगर कस्टमर को कोई जल्दी नहीं है तो शायद आप रेल रोड्स यूज़ करें। अगर आपने अक्रॉस द अटलांटिक कोई चीज़ डिलीवर करनी है तो अगेन आप प्लेन्स ही यूज़ करेंगे, या आप वाटर यूज़ कर सकते हैं, शिप्स के थ्रू आप चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट, द स्पीड, द डिस्टेंस, द कस्टमर प्रेफरेंस एंड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आप चूज़ करते हैं कि इन पांचों में से
कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड आप यूज़ करें और कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं यूज़ करें. एंड देन अगेन whenever you're making a choice of which transportation mode to use and which not to use, you're going to choose that particular transportation mode which is the most efficient and the most effective, and which will distribute the product in the quickest possible manner to the end consumer. So ये आपके different types के transportation mode हैं. Again, जब आप ट्रांसपोर्टेशन मोड्स की बात करेंगे तो उसमें सर्टन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे. अ लॉट ऑफ टाइम अ सिंगल कंपनी कैन यूज़ मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन मोड, जिसको हम इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. वो बाय एयर भी चीज़ को भेजेंगे, एक जगह से दूसरी जगह, लेट्स से अमेरिका से पाकिस्तान बाय एयर आई, पाकिस्तान से लाहौर बाय ट्रेन गई, लाहौर से कराची बाय ट्रक की. सो we were using 3 different transportation modes for transporting a single product from one place to another. This is what we call as birdie back या intermodal transportation. Similarly, आपके एक और चीज़ जब हम transportation modes की बात करते हैं उसमें containerization की बात है. Containerization basically is standardized heavy duty containers in which many items are sealed. Especially अगर आप if you're living in Karachi और अगर आप seaside या seaports की तरफ जाएं, there are huge big containers जो कि लिफ्ट्स जो हैं या क्रेन्स जो हैं उनको लिफ्ट करते हैं. उन कंटेनर्स एक ही साइज होते हैं, एक ही टाइप होते हैं, उससे मल्टीपल आइटम्स जो हैं वो उसमें प्लेस्ड होते हैं. वो शिप से निकाली जाती, वो जो आपकी क्रेन्स हैं वो उनको शिप से निकालती हैं और पोर्ट पर रखती हैं, पोर्ट से निकालती हैं और ट्रक्स पर रखती हैं, और ट्रक्स जो हैं उनको रिस्पेक्टिव जगहों पर डिलीवर कर देते हैं. सो दैट इज़ व्हाट कंटेनराइजेशन इज. एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन इन ई कस्टमर्स. अगेन आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करना चाहिए, और स्पेशली विद रेफरेंस टू ई कस्टमर्स के साथ, स्पेशली ई कस्टमर्स के साथ क्या होता है कि आपकी जो प्रोसेस है जहाँ पर आप चीज़ पसंद करते हो और ऑर्डर देते हो वो तो बहुत जल्दी हो जाता है, पेमेंट भी आप फ़ौरन कर देते हो. लेकिन ई कस्टमर जो है, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर, सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड क्या होता है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट में. जब तक उसको चीज़ मिलती नहीं है, कई दफ़ा देर में मिल रही होती है, उसकी पैकिंग ख़राब हो जाती है या वो ख़राब खुद से हो जाती है, आपका कस्टमर डिससेटिस्फाइड होता है. सो ई कस्टमर्स के रेफरेंस से यू नीड टू मेक श्योर कि जो आप ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज़ कर रहे हैं या जिस तरीके से आप अपने कस्टमर को चीज़ डिलीवर कर रहे हैं वो एक ऐसी तरीका हो जिसमें आपकी प्रोडक्ट टाइमली मिले, आपकी प्रोडक्ट उस टाइम पर मिले जो कि जिस टाइम पर आपने प्रॉमिस की है, और आपकी प्रोडक्ट की जो कंटेनर है या जो उसकी कंडीशन है वो एक आइडियल कंडीशन हो जो कि आपने उनसे प्रॉमिस की है, सो दैट आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट ऐसी हो कि आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड कस्टमर हो. सो इंटरमॉडल या बर्डी बैक या कंटेनराइजेशन जो है ये आपके अगेन ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के रेफरेंस से हम बात करते हैं, या रिलेटिवली नई चीज़ें हैं विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन मोड्स. नाउ टू एंड आवर चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू लास्टली डू इज डिस्कस hubs, yeah, discuss transportation hubs. Now, if I ask you what a hub is, I hope let's look it up in a dictionary. Yeah, आप अगर इस टर्म को गूगल करें तो क्या आएगा? हब इज़ बेसिकली दैट सेंटर पॉइंट जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है. सो दैट सेंटर थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर थिंग जहाँ पर हर चीज़ आकर रुकेगी इज व्हाट वी कॉल एज अ हब. ठीक हो गया. नाउ ट्रांसपोर्टेशन हब का क्या मतलब? ट्रांसपोर्टेशन हब का मतलब ये दैट सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स दैट कंट्रोल ऑल और मोस्ट ऑफ अ फर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज. सो हब एक वो सेंट्रल पॉइंट होगा जो कि किसी भी कंपनी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, चाहे वो इनकमिंग सप्लाईज हो या आउटगोइंग यूनिट्स हो. एक हब जो है वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा. हब का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? हब का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि द हब बिकम्स अ सेंट्रल पॉइंट जहाँ पर सारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ हो रही होती है. मतलब कि जब एक ही पॉइंट से सब कुछ काम होगा तो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगी. जब सेंट्रलाइजेशन होगी तो चांसेस ऑफ एरर्स या चांसेस ऑफ मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे. सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हब या ट्रांसपोर्टेशन हब. नाउ हब्स जो होते हैं वो थ्री डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, rather two different टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट अप यू हैव अ सप्लाई साइड हब और अ प्री स्टेजिंग हब. सप्लाई साइड हब और प्री स्टेजिंग हब साइड बाय साइड चलते हैं. लेट्स जस्ट डिस्कस द सप्लाई साइड हब फर्स्ट. सप्लाई साइड हब इज कि इफ देयर इज अ मैन्युफैक्चरर
वो मैन्युफैक्चरर अपनी ही फैक्ट्री में एक सिंगल लोकेशन सेट कर देता है जहां पर सारा रॉ मटेरियल आ रहा होता है. सो दैट बिकम्स अ सप्लाई साइड हब विच बिकम्स अ सेंट्रल लोकेशन फॉर रिसीविंग ऑल द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वेरियस डिफरेंट रॉ मटेरियल सप्लायर्स. इसका मतलब ये कि जितने भी सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल होंगे जो कि उस कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे होंगे, वो एक पॉइंट पर जाकर अपने रॉ मटेरियल को डिलीवर कर रहे होंगे. दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, स्ट्रीमलाइनिंग हो जाती है, इश्यूज कम हो जाते हैं. प्रॉब्लम क्या आती है कि जब बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, तो बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में रॉ मटेरियल्स आ रहे होते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ट्रांसपोर्टेशन कंजेशंस हो जाते हैं, जैम्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैनेज नहीं कर पा रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रही किसको आगे भिजवाएं, किसको पीछे रोकें, और कन्फ्यूजन अराइज होती है. इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो कन्फ्यूजन अराइज होती है सप्लाई साइड हब में, आपका प्री स्टेजिंग हब होता है. प्री स्टेजिंग हब ये होता है कि आप अपनी फैक्ट्री से थोड़ा सा दूर एक हब बनाते हो जिसको आप आउटसोर्स कर देते हो या एक थर्ड पार्टी को दे देते हो कि वो हब जो है वो एक थर्ड पार्टी मैनेज करे. आपकी अपनी कंपनी उस हब को मैनेज नहीं करती. सप्लाई साइड हब को आपकी अपनी कंपनी मैनेज कर रही होती है, लेकिन प्री स्टेजिंग हब को जो कि आप अपनी फैक्ट्री से थोड़ा सा दूर बनाते हो, वो एक थर्ड कंपनी मैनेज कर रही होती है. वो थर्ड कंपनी मटेरियल्स रिसीव भी करती है, मटेरियल्स को हैंडल भी करती है, उनको सही तरीके से स्टैंडर्डाइज भी करती है, उनको सीक्वेंसिंग भी उनकी करती है, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड के बेसिस पर फैक्ट्री में सेंड भी करती है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ प्री स्टेजिंग हब. और इसीलिए मैंने आपको कहा कि जी 3 डिफरेंट टाइप्स के हब नहीं होते. आपका सप्लाई साइड हब होता है, और जो सप्लाई साइड हब में जो कंजेशंस और जो कंफ्यूजन्स होती हैं उसको दूर करने के लिए आपका एक और हब होता है जिसको हम प्री स्टेजिंग हब कहते हैं. नाउ प्री स्टेजिंग हब के बाद आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन हब आता है. डिस्ट्रीब्यूशन हब इस कि जब आपने रॉ मटेरियल रिसीव कर लिया, रॉ मटेरियल को यूज़ करके आपने अपनी प्रोडक्ट बना ली, अपनी गुड बना ली, उसके बाद आपने उस गुड को डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन हब होगा जहां पर आप अपनी फिनिश गुड को भेजोगे, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन हब में जो लोग होंगे, जो सिस्टम्स होंगे, जो प्रोसेसेस होंगे, वो उस प्रोडक्ट को फर्दर लोकेशंस में, चाहे वो होलसेलर्स हों, चाहे वो रिटेलर्स हों, चाहे वो डायरेक्ट कस्टमर हो, वो जो है डायरेक्टली उन लोगों को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ डिस्ट्रीब्यूशन हब. अगेन, a supply side hub or a pre-staging hub is basically on the side जहाँ पर आप raw material receive कर रहे होते हैं. On the other hand, the distribution hub is on the opposite side जहाँ पर raw material receive करने के बाद, product को बनाने के बाद, जब आप product को distribute कर रहे होते हैं, further intermediaries को send कर रहे होते हैं, further customers को या industrial users को send कर रहे होते हैं, तब आपका industrial hub जो है वो यूज़ होता है. सो दैट इज़ व्हाट अ हब इज. अगेन, हब का प्राइमरली या प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि हब बिकम्स अ सेंट्रल लोकेशन वेयर बाय एवरीथिंग कम्स टू दैट हब, एंड देन द हब मेक्स अ डिसीजन कि उसको किस तरीके से फैक्ट्री में भेजना है, किस रेट पर फैक्ट्री में भेजना है, कैसे उसको यूज़ करना है. सिमिलरली द हब विल मेक द डिसीजन कि जो प्रोडक्ट फिनिश गुड आ रही है उसको आगे फर्दर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होगी, कौन सा बाकी सारी चीज़ें यूज़ होंगी. So this here is the end of chapter number 12 and lecture number 25. The good thing here is that we just have a very few lectures to go, and that means that we are finishing our course and we are finishing our ITB का जो हमारा कोर्स है वो ख़त्म होने वाला है. So we need to celebrate a little bit. So आज के लेक्चर के बाद you need to celebrate कि हमने 25 लेक्चर्स ख़त्म कर लिए, हमने 12 चैप्टर्स पढ़ लिए. I hope कि 12 चैप्टर्स आपको समझ में आए हो, and I hope that you've been reading your chapters continuously with me. If you've been not, तो celebration थोड़ी सी डिले कीजिए और अपने चैप्टर्स को पहले पढ़ लीजिए. Before I say Allah Hafiz to you and before I say my goodbyes to you, let's just have a quick recap with you guys so that if there are any confusions about what we have done and what we have not done, वो सारी confusions जो हैं उनको हम ख़त्म कर लें. The very first thing is chapter number 12 में हमने बात की distribution mix की, जिसमें हमने आपको explain किया कि distribution क्या चीज़ होती है. Then we told you what intermediaries are, कि wholesalers और retailers में क्या फ़र्क होता है. Then we went on to explain to you that there are 8 different kind of distribution channels होते हैं. 8 distribution
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आपके कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स के लिए होते हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए होते हैं, और एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसको यूज़ करके आप कंज्यूमर गुड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की कि जी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात करते थे तो हमने कहा कि कुछ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं जो कि कोई इंटरमीडियरी को यूज़ नहीं करते, द प्रोड्यूसर सेल्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, और कुछ आपके नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं जिसमें आपका जो प्रोड्यूसर होता है वो इंटरमीडियरीज को, चाहे वो ब्रोकर्स हों, एजेंट हों, होलसेलर्स हों या रिटेलर्स हों, उनको यूज़ करके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन वी सेट के जी जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी के बारे में सोचती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज के आप कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज़ करेंगे और कौन से चैनल मेंबर्स यूज़ करेंगे। इसमें आपके 3 डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रैटेजीज आती हैं, इंटेंसिव, सिलेक्टिव एंड एक्सक्लूसिव। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने चैनल्स यूज़ कर रहे हैं और आप कितने चैनल मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं, आप सिलेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंटेंसिव भी यूज़ कर सकते हैं और आप एक्सक्लूसिव भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हमने बात की कि जब आप चैनल्स की बात करेंगे और इंटरमीडियरीज की बात करेंगे तो फिर चैनल कॉन्फ्लिक्ट भी आता है और चैनल लीडर या चैनल कैप्टन भी होता है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल मेंबर होता है चैनल का, विच इज़ जनरली द प्रोड्यूसर। उसके बाद फिर हमने बात की कि आपके होलसेलर्स भी होते हैं, फिर आपके मर्चेंट होलसेलर्स की हमने बात की। हमने कहा मर्चेंट होलसेलर्स में भी आपकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें आपके ड्रॉप शिपर्स भी होते हैं, जॉब रैकर्स भी होते हैं। फिर हमने उसी तरीके से हमने एजेंट और ब्रोकर्स की भी बात की और वी एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल कि आपके एजेंट और ब्रोकर्स कौन से होते हैं, उनके पास एग्जॉस्टिव या एक्सटेंसिव मार्केट नॉलेज होती है, दे आर द वंस जो कि ओनरशिप या टाइटल नहीं देते प्रोडक्ट का और वो कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी वेंट ऑन टू टेल यू के जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के कैसे होते हैं। रिटेलर्स में हमने आपसे बहुत एक्सटेंसिव आपने हमसे डिस्कस किया कि जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी आएंगे, सुपरमार्केट्स भी आएंगे, डिस्काउंट स्टोर्स भी आएंगे, स्पेशलिटी स्टोर्स भी आएंगे, कन्वीनियंस स्टोर्स भी आएंगे। फिर हमने बात की कुछ नॉन स्टोर रिटेलिंग भी होती है जहाँ पर डोर टू डोर होती है या टेली मार्केटिंग होती है। फिर हमने आपसे बात की कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरीज भी होते हैं जहाँ पर आपकी ई कैटलॉग्स होती हैं या साइबर मॉल्स होती हैं। एंड देन sort of towards the end of the chapter we started discussing कि अच्छा आपका retailing भी होती है, फिर आपकी physical distribution product की भी होती है। physical distribution के reference से हमने बात की कि what are the factors which affect the physical distribution of a product, कि अगर आपने कोई transportation mode use करना है तो आप कौन से factors को consider करेंगे to choose a particular transportation mode। then we also discuss कि जी आपके various different types of transportation modes कौन से होते हैं। and finally we ended our discussion with the talk on कि जी आपके ट्रांसपोर्टेशन हब्स क्या होते हैं, आपके सप्लाई साइड हब्स भी होते हैं और आपके डिस्ट्रीब्यूशन साइड हब्स भी होते हैं। दिस हियर एंड्स चैप्टर नंबर 12 एंड लेक्चर नंबर 25। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।